हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एट हिट बुलseye। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। नाउ दिस टॉपिक इज लाइक जो हम एग्जाम में छोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी में बहुत हार्ड कैलकुलेशंस हैं, सो लेट्स लीव द टॉपिक। बट टुडे इन दिस वीडियो मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज को दूर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस ट्रिक्स के थ्रू समझ आए और आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएं। सो वी विल टेक अप बॉल एंड बैक प्रॉब्लम्स टुडे। नाउ द टाइप वन इज, अगर हमें एंड लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चन में, लाइक द एंड वर्ड, द कनेक्टिंग वर्ड इज एंड। So the question says that in a bag there are 4 green and 3 blue balls. 3 balls are picked at random. Probability that 2 are green and 1 is blue. So हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 4 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है जब हम बॉल्स को पिक करेंगे जिसमें 2 ग्रीन निकले एंड 1 ब्लू बॉल निकले। सो अगर हमें एंड लिखा हुआ दिखता है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, द कनेक्टिंग वर्ड इज एंड। सो लेट्स सी हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सो वी हैव 3 balls जिसमें से 2 green and 1 blue। नाउ अगर हमें एंड दिखता है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, आप स्क्रीन पे देखेंगे 4c2 आपको लिखा दिख रहा है, 3c1 दिख रहा है, 7c3। व्हाट डज दिस इंप्लाई? 4c2 means there were 4 green balls in total. 2 green balls we have to select. Multiply. 3c1 means 3 blue balls are given in total and 1 we have to select. Then 7c3 is just the combination of both of them. 7 balls were in total and 3 we have to calculate, or we have picked at random. सॉल्विंग दिस, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिलेगी। आई होप सबको फैक्टोरियल्स ओपन अप करने आते होंगे। अगर नहीं आते हैं प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। You will get 18 by 35 if you solve this equation. Let's see some of the tricks now. In cases when two balls are picked at random, equation becomes NC2. Now in videos के थ्रू मैं आपको ये ट्रिक्स और मैं आपको शॉर्टकट कंसेप्ट से समझाना चाहता हूँ ताकि आप इनको इजीली समझ पाएं और अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से आप बिल्कुल ना डरे and you can score well in your exams. So in particularly this question, if I talk about NC2, so the formula becomes N in the numerator, bracket में N minus 1 upon 2. Let's see one example. So if I say 6c2, so all you have to do is आप 6 का half करेंगे, that will be 3, and उसके बाद उसको multiply करेंगे, उसमें से after subtracting 1. So 6 में से if you subtract 1, that is 5. So 3 into 5, 15. Easily you can get to this answer. Now suppose when one ball is picked at random, the equation becomes NC1. How to solve this? So now NC1 will always give you an answer that will be equal to N. For example, if we take 6C1, आप calculate कर से देख सकते हैं and you will come to the answer as 6 only. Another case, when N minus 1 balls are picked at random, equation becomes what? So Cn minus 1 will always give you same exact solution, that is N. So 6C5 for example if we take, so that will give you 6 only. Every time you can take 4C3, you can say take 2C1, you can take 9C8. So whenever the equation is in the form of Cn minus 1, you will always get N as an answer. Now in cases when all balls are picked at random, the equation becomes Ncn. Now this will give you an answer, that is 1. For example, if we see 6C6, if we see 5C5, 4C4, any number you take, the similar numbers, the similar value of n, so that will give you 1 as an answer. Let's see type 2 now. In a bag there are 4 green and 6 blue balls. 2 balls are picked at random. Probability that 2 are green or 2 are blue. So now here अगर हम देखेंगे हमारा जो connecting word है last में, that is or का मतलब होता है addition in terms of probability. So we have to pick 2 balls, 2 green or 2 blue balls. Now पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने देखा था हमने मल्टीप्लाई किया था because the connecting word was and. Now in this question the connecting word is or, so we will add this 4c2 plus 6c2 upon 10c2 with similar concept. मैंने आपको अभी 2 के रिस्पेक्ट में nc2 की वैल्यूज बताई थी, कैसे सॉल्व होगा। सिंपल आप कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द होल इक्वेशंस, द होल कैलकुलेशंस। आप 4c2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 into 3 that is 6, 6c2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 into 5 that is 15. Similarly for the 10c2 as well. So अगर आप इसे सॉल्व करेंगे easily you'll get to the answer as 7 by 15. Let's see type 3 now, जहां पे both and और दोनों आपको मिलेंगे. So
In a bag there are 4 green and 6 blue balls. 4 balls are picked at random. Probability that 3 are green and 1 is blue, or 2 are green and 2 are blue. So यहाँ पे आपको दोनों connecting words मिले. You got the and you got the or as well. Let's see इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. कुछ स्टूडेंट शायद इसे छोड़ देंगे कि सर ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेंथी कैलकुलेशन होंगी, बट आई टेल यू ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन सकता था. सो हम पहले गिवन लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन में जाने की जरूरत ना पड़े. सो 4 balls वी हैड टू पिक एट रैंडम, 3 ग्रीन एंड 1 ब्लू. और का मतलब पॉजिटिव यानी कि एडिशन साइन होता है, सो दैट विल गिव यू 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू balls. The equation becomes 4c3 multiplied by 6c1 multiplied because and है upon 10c4 plus क्योंकि और है 4c2 into 6c2 upon 10c4. आप इसको फिर से यहाँ पे कंसेप्ट आपके लग सकते हैं. 6c1 में आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 6, 4c2 में आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 2 into 3 6, और 6c2 में भी आपको डायरेक्ट मिलेगा. इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, so you will get these equations. आप शॉर्टकट तरीके से इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे, आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे. सो नाउ इन द एग्जाम यू हैव टू सी कि आपको किस फॉर्म में आपके ऑप्शंस मिले हैं. अगर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं यहाँ पे 114 अपॉन 210, आपका ये ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 19/35 भी एक ऑप्शन मिल सकता है. ऑल यू हैव टू सी कि आपको क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप आंसर को टिक कर सकते हैं. So this was all for this video. I hope आपको ये समझ आया होगा. So I will make more video on this particular topic जहाँ पे मैं आपको और different तरह के types समझाऊंगा इस question में जो आते हैं. Stay tuned to our channel. If you like this video, do comment, subscribe to our Hit Bullseye channel. Thank you.